ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ यानी कि मिश्रित ਵਿਆਜ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ यानी कि ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ यानी कि ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ 200, 400, 500 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਫੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਕਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਕਮ ਦੇਊਂਗਾ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਧਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਊਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ 5% ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰ। ਦਰ 5%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 5%, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 5% ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, 100 ਦਾ 5% ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਹ 5 ਰੁਪਏ ਫालतू ਦੇਊਂਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 5
रुपए। सो कुल मिला के मैं उन्होंने 10 रुपए देऊँगा। 2 साल बाद जदों मैं उन्होंने 100 रुपए मोड़ूंगा तो वो 10 रुपए होर मोड़ूंगा। आ 100 तो है मूल धन जिन्हों आप प्रिंसीपल बोलते हैं पी, प्लस आह की है ब्याज जिन्हों आप इंटरस्ट बोलते हैं। सो इन्हों दोनों तो मिलती है अपने कोल अमाउंट जिन्हों असी कुल राशि बोलते हैं। सो यह तो है सिंपल इंटरस्ट। जदों हर साल जिहड़ा ब्याज यानी कि इंटरस्ट सेम हुंदा है, इट मीनस जिहड़े पैसे उधारे लए गए ने या किसी नूं उधारे दिते गए ने ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹੀ ਰਕਮ ਲਈਏ 100 ਰੁਪਏ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ पहले साल के लिए सधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरस्ट के बराबर ही होंगे, उस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो पहला जो 100 रुपए उधारे लए तो 5% क्योंकि रेट फिक्स किया होया है तो वह जोड़ा ब्याज बनेगा वो 5 रुपए ही बनेगा। हुण की होएगा, यह 100 रुपए पहले साल लई उधारे दिते, जदों पहले साल लिए 100 रुपए सी उन्होंने उत्ते ब्याज बन गया 5 रुपए। हुण जदों 1 साल खत्म हो गया तो दूजा साल जो शुरू होना है तो जिहड़ा ब्याज है वह 100 रुपए ते ना गिण के 105 रुपए ते गिणिया जाएगा। आह 100 ते आह 5 नूं जोड़ के जिहड़ी रकम बनेगी 105। अगले साल दे लई जिहड़ी ब्याज दी कैलकुलेशन है वह कीती जाएगी 105 रुपए ते ना कि 100 रुपए ते। इस केस दे विच की सी, पहले साल भी जिहड़ी कैलकुलेशन होई सी वह 100 रुपए ते होई सी, तां आपां नूं उहदा 5% 5 रुपए मिल गया सी। दूजे साल भी 100 रुपए ते ही होई, तां ही आपां नूं ब्याज जिहड़ा मिलिया वह 5 रुपए मिलिया क्योंकि ब्याज सेम है। इसलिए हर साल जिहड़ी कैलकुलेशन हुंदी है ब्याज दी ओह 100 रुपए ते ही हो रही है इस केस दे विच। पर इस केस दे विच की हुंदा है, ज्यों-ज्यों साल खत्म हो जाता है, जेकर ब्याज सालाना लगता पिया है, 1 साल खत्म होए ते जिहड़ी पहले साल की रकम हुंदी है उहदे विच जिहड़ा ब्याज हुंदा है वो जोड़ के नवीं रकम बना ली जाती है यानी कि नवां मूल धन जिन्हों आप कहने नवां प्रिंसीपल बना लिया जाता है। हुण दूजे साल जिहड़ा इंटरस्ट कैलकुलेट करना है वह इस रकम ते कैलकुलेट होएगा ना कि पुरानी वाली रकम ते। सो तां करके जिहड़ा इंटरस्ट बनता है दूजे साल का वह 5 रुपए ना रह के 5 रुपए तो वध जाएगा। इस हर बार 5 रुपए सी, इहदे विच पहले बार 5 रुपए, अगले साल लिए 5 रुपए तो वध जाएगा क्योंकि रकम वध गई। इसी तरह जिहड़ा दूजे साल का इंटरस्ट होएगा I2 ਉਹ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दिता जाएगा। मान लो दूजे साल का इंटरस्ट आ जाता है अपने कोल 6 रुपए, ये मनते पे हाँ, सिर्फ आप पूरा कैलकुलेट नहीं किया। सो ये जो 6 है ये जुड़ के 111 रुपए बन जाएगा। तो इन्हों दोनों तो जोड़े आ 111 बन गए। तीजे साल के लिए जी कैलकुलेशन करनी है इंटरस्ट की वो की जाएगी इस 111 रुपए के उत्ते। सो यही फर्क है कि कंपाउंड इंटरस्ट दे लई जदों साल पूरा हो जाता है तो रकम जिहड़ी है वह पहले वाली दे विच इंटरस्ट जोड़ के नवीं रकम जिहड़ी बनती है उसनूं नवां मूलधन मन्निया जाता है तो नवें ब्याज की कैलकुलेशन दूजे साल लई उस नवीं रकम ते कीती जाती है। सो कंपाउंड इंटरस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरस्ट तो ज़्यादा हुंदा है। जेकर तुहानूं या तुहाडी फैमिली चों किसी नूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ पै गई, कदे ते पैसे उधारे फड़ने पए, तां पता कर लेना कि वह पैसे सिंपल इंटरस्ट ते मिलते पे ने तुहानूं कि कंपाउंड इंटरस्ट ते। जेकर 2 थावां तो एक थां तो सिंपल इंटरस्ट ते मिलते हैं, दूजी तो कंपाउंड इंटरस्ट ते रेट सेम है, दर यानी कि सेम है, तो सिंपल इंटरस्ट वाले ही बैटर होणगे तुहाडे लई क्योंकि इस केस दे विच तुहानूं घट इंटरस्ट यानी कि घट ब्याज देना पवेगा। हुण अगे गल करते हैं कि आपां कंपाउंड इंटरस्ट के क्वेश्चनस किस तरह सॉल्व करने ने। कंपाउंड इंटरस्ट के क्वेश्चनस सॉल्व करते होए पहलां आपां निकालांगे कुल राशि यानी कि ए जिन्हों आप अमाउंट बोलते हैं यानी कि कुल राशि। एक कुल राशि की गल आप पहला भी कर चुके हैं, वो कुल राशि सी जदों आप सधारण ब्याज की गल कर रहे सी। ये वाली कुल राशि उदों है जदों आप मिश्रित ब्याज की गल करांगे। उस केस दे विच कुल राशि यानी कि अमाउंट निकालने का फार्मूला हुंदा है P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर n।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। A ਤਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, P ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੂਲਧਨ ਹੀ, यानी कि मूलधन, यानी कि किन्ने पैसे आप किसी को उधारे फड़े या किसी ने उधारे दिते वो मूलधन होएगा। आर दर है, आर है इत्थे दर जो कि पहला ही फिक्स कर दी जाती है 5%, 7%। 5% दर का मतलब कि 100 रुपये पिछे 5 रुपए, जे 7% दर है इट मीनस 100 रुपये पिछे 7 रुपए। हुण अगे आह एन की गल करते हैं आपां, यह एन की चीज़ है। मान लो सवाल दे विच आपां नूं प्रिंसीपल दे दिता गया, रेट दे दिता गया ते नाल ही कह दिता कि जिहड़ा व्याज है वह सालाना जुड़दा पिया है। सालाना यानी कि एनुअली कैलकुलेट हुंदा है, जिहड़ा इंटरस्ट हुंदा है वह एनुअली कैलकुलेट हुंदा है। तां जेकर टाइम है 2 साल, व्याज जुड़दा पिया है एनुअली यानी कि सालाना, तां उस केस दे विच एन होएगा 2, क्योंकि व्याज सालाना जुड़दा पिया है, इसलिए समा जिन्ने साल होएगा एन दी उही वैल्यू बन जाएगी। हुण जेकर व्याज सालाना ना जुड़ के छिमाही जुड़दा पिया होवे, व्याज कैलकुलेट हो रहा है छिमाही, जिन्हों आपां सैमी एनुअली बोलते हैं। सैमी एनुअली दे विच आही जेकर समा अपने कोल 2 साल होवे तां एन दी वैल्यू हो जाएगी उस केस दे विच 4। क्यों? क्योंकि 2 साल दे विच 4 छिमाहियां होंदियां। छिमाही यानी कि 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद व्याज कैलकुलेट हो रहा है तो 4 बार 6-6 महीने लवांगे तो अपने कोल 2 साल पूरे होणगे। सो उस केस दे विच एन दी वैल्यू होएगी अपने कोल 4। सो जदों भी व्याज छिमाही जुड़दा होवे तो समा जिन्ना होएगा उहनूं 2 नाल गुणा कर देनी है तो उत्थों एन मिलेगा। तो जेकर अपने कोल व्याज एनुअली जुड़दा पिया यानी सालाना ही, तो जिन्ने साल होणगे एन उन्ना ही अपने कोल आ जाएगा। हुण इस ए तो बाद जेकर आपां मिश्रित व्याज यानी कि कंपाउंड इंटरस्ट निकालना होवे उस दे लई फॉर्मूला की है, मिश्रित व्याज बराबर आएगा अपने कोल कुल राशि। कुल राशि ये वो राशि है जिहदे विच मूलधन भी शामिल है, व्याज तो शामिल है ही, नाल मूलधन भी शामिल है। सो आपां कुल राशि के विचों जदों मूलधन नूं कढ दांगे तो अपने कोल कल्ला व्याज बच जाएगा, क्योंकि कुल राशि मिश्रित व्याज के केस च आ हुंदी है। सो इहदे विचों आपां मूलधन घटावांगे तो अपने कोल मिश्रित व्याज मिल जाएगा। सो यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिए बन जाएगा CI, कंपाउंड इंटरस्ट नूं शॉर्ट फॉर्म दे विच CI लिखते हैं। CI इज इक्वल्स टू A माइनस P, तो इत्थे जिहड़ा A है वो कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला यह है अपने कोल। ए बन गया अपने कोल कंपाउंड इंटरस्ट का फॉर्मूला। सो इस सारी डिस्कशन तो बाद हुण आपां सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 दे क्वेश्चनस नूं। आने एक्सरसाइज 8.3 दे फर्स्ट क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट अमाउंट यानी कि कुल राशि एंड कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि मिश्रित व्याज, ये दोनों चीज़ां आपां पता करनियां ने जदों आपां नूं प्रिंसीपल यानी कि मूलधन समा ते दर दिते होणगे। फर्स्ट पार्ट दे विच अपने कोल जिहड़ा प्रिंसीपल है यानी कि मूलधन है वो है 10,800, टाइम है 3 ईयर्स, रेट है 12.5%। इनू बदलते हैं पहला तो आपां सधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन दे विच 12 दूना 24 1 25 25/2% पर एनम ये सालाना दिती हुई है अपने कोल। ते नाल ही कहा गया है कि जिहड़ा व्याज है यानी इंटरस्ट है वो कैलकुलेट हुंदा है एनुअली यानी कि सालाना। जदों अपने कोल व्याज सालाना काउंट हुंदा होवे तां समा जिन्ना हुंदा है एन दी उन्नी ही वैल्यू आ जाती है अपने कोल। सो इस केस दे विच एन अपना होएगा 3। सो पहला आपां अमाउंट यानी कि कुल राशि पता करांगे, उसका फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल P1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n। भरदियां वैल्यूज़ 10,800, 1 प्लस R की वैल्यू है 25/2। आ जिहड़ा 100 है इस 2 दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n की वैल्यू है अपने कोल 3। वैल्यूज़ भर लियां, हुण अगे सिंपलीफाई करते हैं आपां। 25 के टेबल च 100 की कटिंग 4 ते होगी तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस 1/2 4 8 रेज़ टू पावर 3।
अंदर आपां बटरफ्लाई लगा के इनू सॉल्व कर सकते हैं। 1 इंटू 8 8 बनेगा, 1 इंटू 1 1 बनेगा। सो 8 ते 1 बन जाएंगे 9 बटे इन्हां दी आपस च गुणा 8 ਉਹਦੀ पावर 3 ਤੇ बाहर है अपने को 10,800 आपस च नहीं मल्टीप्लीकेशन। हुण इहदी आह पावर हटाने आ तां 3 बार लिखिया जाएगा 9/8 नूं 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 अपने को आ जाएगा। हुण इन्हां दी कटिंग कर लैंदे आपां 8 दे टेबल दे विच 8 1s are 8 फिर 28 आएगा, 8 3s are 24 फिर अपने को 445 आ जाएगा अपने को। फिर 2 ते कटिंग करते हैं इसकी आपां अपने को आएगा 6 2s are 12 उस तो बाद 1 15 7 2s are 14 1 10 675 आ जाएगा। इसकी नाल 2 ते कटिंग हो जाएगी बन जाएगा अपने को 4। सो हुण इन्हां दी तिन्नां दी मल्टीप्लाई 675 दे नाल करांगे, फिर आपां 32 दे नाल इहनूं करांगे डिवाइड। इन्हां तिन्नां तो अपने कोल बनेगा 729 क्योंकि यह हो गया 9 का क्यूब यानी कि 9 का घन तो 675 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं इनू आपां 45 4 14 1 35 एंड 1 36। सो 9 7 63 3 6 7 दूनी 14 तो 6 20 2 7 7 49 तो 2 51 दैन 9 6 are 54 5 6 दूनी 12 5 17 1 7 6 are 42 एंड 1 43। सो 5 7 6 and 4 10 1 3 and 1 4 4 and 1 5 7 12 1 5 3 8 1 9। सो 492075 ये आ गया अपने कोल। इनू डिवाइड करना है हुण आपां 32 ते। सो 492075 डिवाइड करते हैं इनू आपां 32 ते। 32 1s are 32 पहला तो 1 ते ही जाएगा सबट्रैक्ट करके 172 बन गया। फिर ये जाएगा अपने कोल 5 ते। सो 160 आ जाएगा सबट्रैक्ट करके आ जाएगा 12 उस तो बाद आह 0 120 32 के टेबल फिर यह जाएगा अपने कोल 3 ते। 3 ते जाएगा तो 96 आ जाएगा सबट्रैक्ट करके 24 आ गए, आ 7 आएगा नीचे। फिर ये जाएगा अपने कोल 8 ते ले जाके देखते हैं इनू 32 8s are 8 2s are 16 1 8 24 1 25 256 नहीं वध गया। सो 7 ते करांगे 7 दूनी 14 1 7 21 ते 1 22 सबट्रैक्ट करके मिल जाएंगे आपां नू 23 ते आह 5 आएगा नीचे 235। सो फिर तो यह जाएगा अपने कोल 7 ते ही 224 ही आ जाएगा इस दे नीचे घटा के आ जाएंगे अपने कोल 11 तो पॉइंट 0 नीचे आएगी 110। फिर ये जाएगा 3 ते 96 सबट्रैक्ट करके मिल जाएंगे अपने कोल 14 0 140। फिर यह जाएगा अपने कोल 3 ते। सो 15,377.33 रुपीज़ 15,377.33 ये आ जाएगी अपने कोल अमाउंट यानी कि ए दी वैल्यू। फिर इस तो बाद निकालते हैं हुण आपां कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि मिश्रत व्याज जो कि हुंदा है ए माइनस पी यानी कि कुल राशि माइनस मूलधन। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इहदी जगह ते कुल राशि माइनस मूलधन लिख सकते हैं। सो ए दी वैल्यू 15,377.33 15,377.33 माइनस ए चो करना है आपां 10,800 नूं तां करदे हां सोल्व पिछे 0.33 ही आ जाएगा अपने कोल 7 फिर अपने कोल आ जिहड़ा होएगा 13 चो 8 कड्डे 5 फिर इत्थे रह जाएगा अपने कोल 4 चो 0 घटाए 4। सो 4,577.33 रुपए यह अपने कोल आ जाएगा कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि मिश्रत व्याज। आने आ बी पार्ट ते हुण आपां प्रिंसीपल यानी कि मूलधन आपां नूं दिता गया 18,000 समा है 2.5 साल दर है अपने कोल 10% सालाना ते नाल कहा गया जिहड़ा इंटरस्ट है वह कैलकुलेट हुंदा है एनुअली यानी कि सालाना कैलकुलेट किया जाता है। सो इहदे विच पहलां आपां निकालदे हां ए दा फार्मूला हुंदा अपने कोल P1 + R/100 रेज़ टू पावर n ये हुंदा अपना फार्मूला।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਧਨ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹ ਹੈ 18,000, 1 ਪਲੱਸ ਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10%, 10/100 ਦੀ ਪਾਵਰ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਹ 2 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 1 ਪਲੱਸ r ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10/100 ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਅੱਧੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਆਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਧਾ, यानी कि आह 10 ਦੇ नीचे 2 × 100 लिखांगे। इट मीनस ਆਪਾਂ आह 10 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ नीचे 2 लगा ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ n 1 ਤੇ ਦਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ, ਸੋ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਸੋ 18,000 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 1 + 1/10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2। ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 + 1/20। ਫਰਦਰ 18,000 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੋਂ 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 10, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 10 ਤੇ 1 11/10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ 1 21/20 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਰਦਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 18,000 × 11/10 × 11/10 ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ, ਨਾਲ 21/20 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 2 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 2 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 9 ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 189। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਸ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 9 8 ਐਂਡ 9 ਆਰ 17 1 8 9 1 10 1 ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 9702 9 9 7 16 1 7 1 8 2। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 22869। 22869। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ CI ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A - P ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਧਨ ਮਾਈਨਸ ਮੂਲ ਧਨ 22,869 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 18,000 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 4,869। ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ C ਪਾਰਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਧਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ 62,500, ਸਮਾਂ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8% ਪਰ ਐਨਮ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿਮਾਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ 3 ਵਾਰ ਲਏ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੇ ਦਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ r ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8/2 ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 4% ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ a ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ P 1 + r/100 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਤੇ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 62,500 1 + r ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4/100 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲ 62,500 ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 ਕਿਉਂਕਿ 1 × 100 ਕਰਕੇ 100 4 × 4 100 ਤੇ 4 104/100 ਦੀ ਪਾਵਰ 3।
सो 62,500 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। सो 1 2 1 2 ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ। 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਤੇ 25 25 625 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ। फिर आह 4 2 ते कटिंग होएगी, इत्थों आपां नूं मिल जाएगा 52। फिर आ 2 ते कटिंग होएगी तो आपां नूं मिल जाएगा इत्थों 26। अगे आपां कटिंग करनी चाहिए तो 2 दे टेबल च इसकी कटिंग होएगी 52 ते इहदी हो जाएगी अपने कोल 50 ते। इस तो बाद फर्दर कटिंग करनी होवे तो अपने कोल इहदी हो जाएगी, इत्थे मिल जाएगा 26 अपने कोल, इत्थे मिल जाएगा 25 दूना 50। आ 25 दे नाल आ 25 कैंसल हो जाएगा। सो हुण अपने को लै दे के बचिया 26 26 ते 104। हुण 26 गुणा 26 हो गया अपने कोल 676। 676 नूं 104 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई। 6 चौका 24, 2 7 चौका 28 ते 2 30, 3 6 चौका 24 ते 3 27। सो उस तो बाद 0 0 0, फिर क्रॉस क्रॉस 676 4 0 13 7 ते 1 8 ते 2 10। सो 70304 आ गया अपने कोल। इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके 70,304 रुपए अपने कोल आ गई ए दी वैल्यू। हुण इस तो बाद मिश्रत व्याज यानी कि CI इज इक्वल्स टू A माइनस P, यानी 70,304 दे विचों घटाया जाएगा 62,500 नूं, तो अपने कोल आ जाएगा 4 चों 0 घटा के 4, फिर 0 चों 0 घटा के 0, फिर 3 13 चों 5 घटा के 8, फिर इत्थे रह जाणगे अपने कोल 9, इत्थे 6 9 दे विचों 2 घटा के 7, तो फिर आह 6 दे विचों 6 घटा के 0। सो 7,804 रुपए ये आ जाएगी अपने कोल मिश्रत व्याज यानी कि CI की वैल्यू। ये बन जाएगा दूजा आंसर अपने कोल, तो जी ए की वैल्यू से अपने को बन जाएगा आंसर नंबर 1। आने डी पार्ट ते प्रिंसीपल है अपने को 8000, समा है 1 साल, दर है 9% सालाना, तो क्या होया कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि जिहड़ा व्याज लगता है वह लगता है छिमाही। हाफ ईयरली यानी कि छिमाही, हाफ ईयरली आ जाए चाहे सैमी एनुअली लिखिया आ जाए इक्को गल हुंदी है। सो छिमाही दे लई आपां दर आर नूं बदलांगे बटे 2 करके छिमाही दे विच। सो ये आ जाएगी हाफ ईयरली यानी कि छिमाही। सो पिछले क्वेश्चन च भी इत्थे हाफ ईयरली दे नाल तुसीं पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इहनूं छिमाही लिख सकते हैं। हुण समा है 1 साल तो यह छिमाही कैलकुलेट होंदा पिया। व्याज अपने कोल तां N की वैल्यू है जिहड़ी ओह आ जाएगी अपने कोल 2, क्योंकि साल दे विच 6-6 महीने 2 बार आते हैं। सो N आ गया अपने कोल 2। हुण आपां A यानी कि कुल धन कढ़दे हां या कुल राशि इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर N। सो P की वैल्यू है अपने कोल 8000, 1 प्लस R हो गया अपने को 9 बटे 2 है। आ जड़ा नीचे वाला 2 होएगा तो आ 100 कट्ठे गुणा हो जाएंगे थले, तो N की वैल्यू है अपने को 2 इत्थे। सो 8000 अंदर 1 प्लस 9/200 दी पावर 2। सो 8000 इत्थे आह 200 ते 9 209 बन जाएगा बटे 200 दी घात 2। सो ये बन जाएगा अपने को 8000 इंटू 209/200 इंटू 209/200। कटिंग करते हैं 1 2 1 2 0 1 0 आ कैंसल हो गई। हुण अगे आ 2 दे टेबल च 8 कट्टिया गया 4 ते, फिर आह 2 दे टेबल च कट्टिया गया 10 ते, आ 2 दे टेबल च कट्टिया गया 2 ते। सो आप नीचे वाला 10 नहीं कट्टांगे, इनू एवं रखते हैं, इन्हां दी करते हैं गुणा तो उस तो बाद 10 दे नाल कर देंगे डिवाइड। आपां 209 दूनी 418, इनू मल्टीप्लाई करते हैं 209 ते 8 9 72 7 9 7 16 1 9 चौका 36 ते 1 37, फिर 0 0 0, फिर क्रॉस क्रॉस 418, ये बन जाएगा 836। 2 ना मल्टीप्लाई करे तो 2
6 7 6 13 1 3 3 3 6 1 7 सो आ गया 87,362 बटे आह 10 पे ਉਹਦੇ करके इत्थे पॉइंट लग जाएगा। सो 8,736.2 इन्ने रुपए आ जाएगी अपने कोल ए दी वैल्यू। सो ये आ जाएगा अपने कोल आंसर नंबर 1। सो ये आ गया मिश्रत धन या फिर कुल धन या कुल राशि कह सकते हैं आप। इस तो बाद सी आई की वैल्यू कढ़ते हैं आप मिश्रत व्याज की सी आई यानी कि ए माइनस पी। सो मिश्रत व्याज बराबर कुल धन या कुल राशि माइनस मूल धन। तो ये आ जाएगा अपने कोल 8,736.2 या 20 कह लिख सकते हो माइनस ये 8,000 सबट्रैक्ट करांगे। तुसीं ये पिछे लिख देना, मेरे को जगह है नहीं सी। सो आ जाएगा 736.20 रुपए। ये आ जाएगा आंसर नंबर 2। आने फस्ट दे ई पार्ट ते जिहदे विच अपने कोल प्रिंसीपल है 10,000, टाइम है 1 साल ते रेट यानी कि दर है 8% पर एनम यानी कि सालाना दी हुई है दर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्याज है जिहड़ा वो छिमाही जुड़दा है। सो व्याज क्योंकि छिमाही जुड़दा है तो रेट का कर लेना है आपां अद्धा। सो 8/2 करके कटिंग करके 4%। यह आ जाएगी छिमाही यानी कि हाफ ईयरली। तो क्योंकि 1 साल के 6-6 महीने के 2 पीरीयड होंगे ने, इसलिए अपने कोल इत्थों एन की वैल्यू आ जाएगी 2। सो हुण आपां ए दा यानी कि कुल धन या मिश्रत धन का फार्मूला लगाने जो कि हुंदा है P1 + R/100 रेज़ टू पावर n। वैल्यूज़ भरते हैं तो अपने को आ जाएगा 10,000 1 प्लस इत्थे आ गया 4/100 दी पावर 2। अपने को 4 के टेबल च कटिंग होगी 25 आ गया। सो 10,000 अंदर ये नीचे 1 लगा के बटरफ्लाई के थ्रू 1 × 25 25 1 × 1 1 25 ते 1 26/25 दी पावर 2। सो 10,000 × 26/25 × 26/25 हुण 25 के टेबल च कटिंग करते हैं 25 चौका 100 400 आ जाएगा। फिर 25 के टेबल च कटिंग करते हैं 25 ते टेबल च 16 ते यह आ जाएगा। 26 का स्केयर होंगे अपने को 676। सो 676 की 16 के नाल करते हैं गुणा। छिकम छिकम 36 3 7 6 42 ते 3 45 4 छिकम छिकम 36 ते 4 40। सो यह 676 आ जाएगा। 6 6 5 11 1 7 1 8 6 4 10। सो 10,816 ये आ जाएगी अपने को ए दी वैल्यू इन्ने रुपए। तो ये अपने को आ गया आंसर नंबर 1। इस तो बाद सी आई यानी कि मिश्रत व्याज जो कि ए माइनस पी होंदा है उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर अपने को इस तो बाद इत्थे। सो 10,816 वो चो घटाने आपां 10,000 नूं तो ये आ जाएगा 816 रुपए आंसर नंबर 2। तो यदी जगह तो मिश्रत व्याज इधर कुल धन या मिश्रत धन माइनस मूल धन लिख लेना तुसी। आने दूजे क्वेश्चन ते जिस दे विच है कमाला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ स्कूटर एट द रेट 15% पर एनम। इन्ने रुपए का उन्हें लिया लोन यानी कि बैंक तो उधारे ले तो 15% पर एनम 15% सालाना सी जिहड़ा दर सी व्याज दी। कंपाउंडेड ईयरली यानी कि मिश्रत व्याज के उत्ते लई उन्हें यह राशि। वट अमाउंट विल शी पे किन्ने पैसे वो देवेगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ 2 साल 4 महीने बाद टू क्लीयर द लोन यानी कि बैंक नूं वो किन्ने पैसे मोड़ेगी इन्ने समय बाद। ये अपना है क्वेश्चन। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो सब तो पहला तो अपने को जी उन्हें रकम उधारी ली है वो हो जाएगा प्रिंसीपल P = 26,400 रुपीज़ हो गया है अपने कोल। रेट आर है 15% पर एनम यानी कि सालाना। ये आपां नूं दिता होया ते समा है अपने को 2 साल 4 महीने। टाइम 2 ईयर्स 4 मंथ्स यानी कि 2 साल 4 महीने। हुण आपां इहदे लई अमाउंट कैलकुलेट करनी है क्योंकि उन्हें आ तो देने ही देने ने इहदे नाल जिहड़ा व्याज है वह भी देना। सो अमाउंट कड्डांगे यानी कि कुल धन या कुल राशि कड्डांगे। सो A = P1 + R/100 रेज़ टू पावर n आ हुंदा अपने कोल फॉर्मूला।
ਤੇ a इज इक्वल्स टू p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26400 1 प्लस रेट है जो वो है 15%, सो आ जाएगा 15/100। समा है 2 साल 4 महीने। हुण इह चों 2 साल तो पूरे ने, सो इत्थे तां n की जगह ते 2 आ जाएगा। ते नाल ही आ जिहड़े 4 महीने ने उहदे लई भी आपां नाल ही कैलकुलेशन करांगे 1 प्लस। हुण आ जिहड़े 4 महीने ने, 4 महीने साल दा 12 महीने चों जिहड़े 4 महीने ने यह तीजा हिस्सा ने, यानी कि थर्ड पार्ट। इसलिए आपां इत्थे आर दी जो वैल्यू लवांगे जो कि अपने कोल दित्ती हुई है 15, उहदे नीचे 3 ले लांगे नाल 100 दे, क्योंकि उसदे आपां हुण 3 हिस्से करांगे, क्योंकि जिहड़ा अपने कोल 12 महीने का पीरियड है उहदे विच 4-4 महीने दे 3 पीरियड हुंदे ने। इसलिए आपां जिहड़ी दर है अंदर दूजी बार लैंदे होए उहदे नीचे 3 नाल उहनूं भाग कर देंगे। सो इत्थे यह 5 बन जाएगी, तो क्योंकि 4 महीने का एक पीरियड है, सो इत्थे अपने कोल आ जाएगा 1। सो इहनूं आपां सॉल्व करांगे 26400 ये बन जाएगा अपने कोल 100 ते 15 115/100 ओदी पावर 2। इत्थे इहदी कटिंग हो जाएगी, मिल जाएगा आपां नूं 5 ते इहदे नीचे 1 लगा के 100 ते 5 105/100 आ जाएगा। हुण इहनूं आपां सिंपलीफाई करते हैं। इस तो बाद इत्थे करते हैं सॉल्व आपां 26400 गुणा 115/100 2 बार आएगा, गुणा आएगा 105/100। कटिंग करते हैं, आ दो जीरोज़ नाल कैंसल हो गई। उस तो बाद 5 के टेबल च कटिंग करते हैं, इत्थे आ जाएगा 23 तो इत्थे आ जाएगा अपने कोल 20। उस तो बाद 2 के टेबल च कटिंग करते हैं, इत्थे 10 आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा अपने कोल 132। फिर आपां इहदी कटिंग हले नहीं करांगे क्योंकि 10 दे नाल डिवाइड करना ईजी रहिंदा है। इत्थे करांगे 5 के टेबल च 23, इत्थे करांगे 20 के टेबल दे विच 100। फिर इत्थे 2 ते करांगे 10 मिल जाएगा, यदि 2 ते करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 66। फिर अगे इत्थे आ जिहड़ा 105 है यदी कटिंग कर देंगे 5 के टेबल च 21 आ जाएगा, यदी कटिंग कर देंगे 5 के टेबल च तो 2 आ जाएगा। फिर आ 2 के टेबल च 66 की कटिंग करांगे तो आपां नूं मिल जाएगा 33। सो हुण अपने कोल उपर बच गया 23 23 21 ते नाल आह 33 ते थल्ले है अपने को लै दे के यह 10। सो इन्हां सारियां दी गुणा करके 10 दे नाल कर देंगे इनू आपां डिवाइड, तो अपना आंसर आ जाएगा। सो 23 दी 23 दे नाल गुणा कर देंगे तो अपने को आ जाएगा 529, क्योंकि यह हुंदा 23 दा वर्ग। सो इन्हां दोनों की गुणा होगी। फिर यदि आह 21 ते इहदे विचों आह जिहड़ा 33 है यह 11 गुणा 3 हुंदा, 21 ते आह 3 21 ते 63 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 11 ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 × 27 2 3 दूनी 6 ਤੇ 2 8 5 3 15 ਤੇ 9 6 54 5 6 दूनी 12 5 17 1 6 5 30 ਤੇ 1 31। सो 7 8 4 12 1 7 1 8 5 13 1 3 3। सो ये आ गया। इनू हुण आपां 11 नाल 1 गुणा करनी रह गई ਇਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 3 3 2 7 7 2 3 3 3। सो 7 ते 2 9 3 ते 2 5 3 ते 3 6 3 6 3 से पिछों आह 10 करके एक पॉइंट आ जाएगा इत्थे। सो 36,659.70 ये अपने को आंसर बनेगा 36,659.70। इन्ने रुपए ओह 2 साल 4 महीने बाद बैंक नूं वापस देवेगी ताकि उसका लोन है जो उन्हें लिया सी स्कूटर खरीदण दे लई ओह कंप्लीट हो जाए, यानी कि वह खत्म हो जाए। सो स्टूडेंट्स मैनू उम्मीद है जो अज आप डिस्कशन की तो उस तो बाद एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैंने कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हो तो इसनों लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स नाल शेयर जरूर करना। तो वीडियो लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।